टेक्निकल सपोर्ट के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के टेक्निकल सपोर्ट के लिए एजेंसी काम करती है और इनका एग्रीमेंट होता है इससे। दिस इज स्टेट। स्टेट कम इन डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये लॉर्डशिप, ये तो बहुत सारे, एक तो भितारिन के ऑर्डर्स हैं और इसके अलावा क्या ऑर्डर है उसमें, क्या है उसमें यही बिना नोटिस दिए उनको निकाला गया था। लॉर्डशिप, इट इज गवर्नमेंट एजेंसी, ऑन दैट पॉइंट सेवरल जजमेंट्स आर देयर। नो नो नो, कब तक के लिए था एग्रीमेंट? वो 2019 के लिए तक की, 2020 मार्च तक के लिए। 2020 मार्च तक का ये नहीं। अब लॉर्डशिप वो जो वर्क एग्रीमेंट है वो तो अभी तक के लिए था। अभी जो मीटिंग, एग्रीमेंट कितने साल का होता है? इनका अपॉइंटमेंट तो एक इनका अपॉइंटमेंट छोड़ दीजिए, बात एग्रीमेंट आपका गवर्नमेंट के साथ कितने साल के लिए होता है? वो तो नोडल एजेंसी तो अपॉइंट हो गया माय लॉर्ड। मितानिन किसका एम्प्लॉय होता है? नोडल एजेंसी। तनख्वाह हमसे रिलीज होती है इनकी साहब, मितानिन की। जो तनख्वाह देगा उसी का एम्प्लॉय होगा फिर। I'm working in the hospital department. I'm connected to health department. You are And the working where officers- there, that is different thing. Trustee AG Sri Rakesh Thakur. Respondent number 20, I'm requesting it to kindly be taken after 2 weeks because the respondent number 20 is the NGO lordship and the government is withdrawing the Methanian project from them lordship. It is latest development. So I am requesting it may kindly be taken after 2 weeks lordship. क्या है ये? My grievance is, Lordship, I was appointed as a district coordinator in the Srivas. Lordship. Who was he? He was district coordinator and he was appointed Coordinator of medical department. It is a SHRC department. SHRC यानी State Health Resource Center. State Health Resource Center is It is lordship. support agency. Coordinator, State Health Resource Center, Center. Chhattisgarh. Lordship. What is the issue? Issue is, Lordship, I was appointed in the year 2013 as per prescribed rules, Lordship, by the respondent number 3, and continued work there up to 6 years. And my last agreement to the agency was Appointment was made on the basis of agreement. agreement, Agreement for what period? contractual. It was For contractual. 1 year, One. and extension, continue extension has been given to me. I have worked there up to 2019. And my agreement was 2020, March 2020. In the till March 20, before it, Lordship, in August 2029, I was terminated. August 2019, I was terminated. Why? Premature termination. on which ground? No allegation is there, Lordship. Without having any allegation, without issuing any notice to the petitioner. Contract is terminated with effect from so and so. Government to clause. The no And opportunity of hearing was provided. No, Lordship, it is very इसमें admitted fact. जो टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, जो लास्ट इनका जो वो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पेज नंबर 26, पैरा 7 लॉर्डशिप. You have filed reply. Yes, I have filed reply. I have filed rejoinder also, Lordship. But lordship, since they are withdrawing the state government is withdrawing the project from the respondent number 2 and 3 lordship. It's the latest development. वो लेटेस्ट डेवलपमेंट को छोड़ दीजिए, तो बात की बात नहीं, लॉर्डशिप, इफ एनी ऑर्डर पास अगेंस्ट दी SHRC लॉर्डशिप, यदि वो नौकरी देने का आदेश आप करते हैं तो उसको कंप्लाई कौन करेगा? ये आप करेंगे और कौन करेगा? नहीं, मैं तो हट जाऊंगा, मैं मुझसे तो आप हट जाएंगे तब तक नहीं है, जब तक इनका जब तक जहाँ चार्ज खत्म नहीं कर देगी आपको, वो कल तब तक तो देंगे ना। लॉर्डशिप, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म, कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो MD हैं हेल्थ के, वो उन्होंने कहा है कि वी आर विड्रॉइंग द प्रोजेक्ट. ये हेल्थ डिपार्टमेंट का लॉर्डशिप टेक्निकल सपोर्ट की एजेंसी है. हेल्थ रिसोर्स सेंटर इज लॉर्डशिप NGO. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जी. स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर, ये किसके अंडर में आता है? ये हेल्थ डिपार्टमेंट का होता है लॉर्डशिप, स्टेट की एजेंसी है. नहीं, स्टेट की एजेंसी नहीं है सर, स्टेट की एजेंसी नहीं, ये NGO है साहब, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो गवर्नमेंट के फंड पे, जिसमें 40% रेशियो स्टेट गवर्नमेंट का होता था और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का. उस फंडिंग पे हम मितानिन प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट का था उसको हम वो करते थे, मैनेज करते. आपके NGO का वो क्या है, लॉर्डशिप, नाम क्या है? स्टेट. मैंने साहब इसमें अपने रिप्लाई के साथ उनका जो रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, तो मैंने लगाया था.
पेज नंबर 10-11 देखिए मेरी रिप्लाई का। तो गवर्नमेंट के साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट? लॉर्डशिप, हमें कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मिला था मितानिन प्रोग्राम को छत्तीसगढ़ स्टेट में ऑपरेट करने का। दिस स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी लॉर्ड। इसका कुछ रहता नहीं क्या कि ये किसके नाम से है, कौन है इसका, सोसाइटी का हेड कौन है, ऐसा कुछ नहीं रहता? नहीं, उसका State- बाइलॉज है साहब, उसमें पूरा दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट लॉर्डशिप register- इसके हेड होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हेड होते हैं। नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट हेड नहीं होते साहब। ये सब इनका जो हेड है वो भी कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में। आपका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ कहाँ है? मैंने इससे फाइल नहीं किया है साहब, क्यों नहीं किए? बिकॉज इट इज द एडमिटेड फेडरल। एडमिटेड दोनों राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसा है? हाँ, नहीं था। तो फिर यदि आप कहेंगे तो एग्रीमेंट तो मैं फाइल करना चाहिए ना। जी देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन दिस स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर छत्तीसगढ़ एंड हेल्थ डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़। जी एग्रीमेंट हुआ होगा ना आपका? हाँ, एग्रीमेंट आपको है काम कैसे मिला स्टेट गवर्नमेंट से? अंडर लॉर्डशिप एग्रीमेंट Where is that executed between. agreement? I have to right now I am not having, Have I am not you filed. pleaded? जी मैंने प्लीड किया है साथ कहाँ में। प्लीड किए कि आप एनजीओ हैं और आपका गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था? Not ये पैरा 3 देखेंगे लॉर्डशिप मेरी रिप्लाई का, पैरा वाइज रिप्लाई में पेज नंबर 3 में, that may I read lordship, that regarding amendment made in para 8.1 it is respectfully submitted that the state health resource center is not a government owned organization, it is an autonomous registered society. It does provide technical support to Department of Health and Family Welfare, but the Where you have mentioned that there was agreement between you and government of Chhattisgarh health department, and agreement was for what? to lordship Where you have not mentioned? no, it is not mentioned. क्यों नहीं किए हैं फिर? आधा अधूरा गोल गोल टाइप का। You should have specifically mentioned ना। Not ये तो ठीक है, यहाँ तक it is that state health resource center is not a government owned organization, it is an autonomous registered society, society. and there was agreement between this society and state of Chhattisgarh health department to perform this duty. It is not mentioned. It तो is भाई not- क्यों फिर पता कैसे चलेगा? तो आपको आप प्राइवेट फर्म है तो आपको गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन कैसे हुआ? कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, जी तो क्यों नहीं प्लीट किए हैं? लॉर्डशिप, बट जो इनका जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट हाँ। छोड़िए, आप अपना स्टेटस को क्लियर करिए पहले। व्हाट इज योर स्टेटस? यू आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, रजिस्टर्ड सोसाइटी। लॉर्डशिप हाउ यू कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट? अंडर एग्रीमेंट। अंडर एग्रीमेंट, So what बट इट इज नॉट what was that agreement? What work was entrusted to you? इसके बाइलॉज है। मैं इफ लॉर्डशिप इलाज नहीं, वो एग्रीमेंट में गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किस काम के लिए हुआ था आपका? मितानिन प्रोग्राम को तो उसको लिखना कौन लिखे? एंड टू परफॉर्म दिस ड्यूटी it is respondent had engaged various employees, one of them was petitioner. फैक्ट को पूरा ठीक से कनेक्ट क्यों नहीं करते सीक्वेंस में? बस गोल गोल आधा लिख दिए, बस चुप हो गए। कब तक के लिए था एग्रीमेंट? लॉर्डशिप 2019 के लिए तक की, 2020 मार्च तक के लिए। 2020 मार्च तक है ये। नहीं, अब लॉर्डशिप वो जो वर्क एग्रीमेंट है वो तो अभी तक के लिए था। अभी जो मीटिंग, एग्रीमेंट कितने साल का होता है? इनका अपॉइंटमेंट तो एक इनका अपॉइंटमेंट छोड़ दीजिए, बात जी। एग्रीमेंट आपका गवर्नमेंट के साथ
कितने साल के लिए होता है? वो तो हर लॉर्डशिप एज पर माई नॉलेज वो हर साल रिन्यू होता है और अभी तक उनके पास भाई नाले तो आप कुछ कागज देखे नहीं है, आपके पास है नहीं एग्रीमेंट? नहीं, दैट्स ऑल लॉर्डशिप जो जैसा उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया उस हिसाब फॉर्म से मैं किया तो पिटिशन में प्लीड क्यों नहीं करते? फैक्ट तो पूरा प्लीड करना चाहिए। तो इट इज ए प्राइवेट फॉर्म मैडम। No, Lordship, several orders have been No, passed no, by no. this honorable court. It Lordship, is I will private. place a number of judgments. It will come under the definition of a state. No, how he come? My he working come, place is the how hospital. he come in definition of state? Lordship, I will Is place a registered society only? on that point, and several judgment has been passed in this department, Lordship. It's a very subtle bill. I'm working in the hospital department. I'm connected to health department, You are and the working where officers, and there, that is different thing. Lordship. But you are the employee of this society. Society, but society has agreement with the government. So society, okay. Government, it is So government you are agency. not employee of government. Lordship, it is government agency. On that point, several judgments are there, No, Lordship. no, no. पता नहीं क्या जजमेंट है, लेकिन वो नहीं और एक तो जजमेंट में रखी हूँ, क्या है बताइए उसमें। चलिए आप पढ़िए ना, दूसरे पद के लिए था। पढ़िए ना उसको, क्या है उसमें, क्या था फैक्ट बताइए उसका। हाउ सोसाइटी कैन बी ए स्टेट? ये लॉर्डशिप, ये मितानिन प्रोग्राम का था और मितानिन ने एक एप्लीकेशन लगाया था कि हमको बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग किसका एम्प्लॉय होता है? मितानिन इसी के अंडर में आते हैं सब, अंडर सारे प्रोग्राम का इसी employee के होता है अंदर चलते हैं सब। मितानिन जो है लॉर्डशिप अपॉइंट होते हैं ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर के द्वारा, बीएमओ द्वारा था, और उनको जो पेमेंट और जो उनका जो वर्क जो असाइन होता है वो एसएचआरसी के द्वारा होता है। वो मितानिन प्रोग्राम को ही हैंडल करने के लिए हमको नहीं हैंडल करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। जी, जी। सुपरविजन। हाँ, मितानिन अपॉइंट कौन करता है? Petitioner is here. मितानिन अपॉइंट जो करते हैं साहब वो बीएमओ के द्वारा होता है। ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होता तो दे आर द एम्प्लॉय ऑफ। उनका भी एम्प्लॉय नहीं होते हैं साहब, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। मीना झा वाला जो ये जजमेंट वो साइड कर रहे हैं, मैडम जो साइड कर रही है वो नोडल एजेंसी। हु इज नोडल एजेंसी? नोडल एजेंसी अपॉइंट करके गवर्नमेंट नोडल एजेंसी अपॉइंट करती है किसी इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि ये हेल्थ सेंटर के लिए इनको आई एम द नोडल एजेंसी इन दिस केस, नोडल एजेंसी इन मितानिन प्रोग्राम आई एम द नोडल एजेंसी। ओके। ये उसको रन करते हैं, उसी से गवर्न करते मितानिन को अपॉइंट कौन करता है? हैं। मितानिन जो है नोडल एजेंसी के अंडर में वो होते हैं, अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट कौन करता है उसको? बीएमओ करता है साहब, बीएमओ करता है। अपॉइंट करता है अंडर द ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। वो कैसे करता है? वो क्यों करेगा? हेल्थ स्कीम, जो मितानिन के जो हेल्थ स्कीम है, जो गवर्नमेंट जो गवर्न करती है, चलाती है, रन करती है, उसमें हेल्थ स्कीम में मितानिन को एक अपॉइंट करके, अब उनका जो नेचर ऑफ सर्विस था वो नोडल एजेंसी लगा दी है सब मतलब काम के लिए, तो मितानिन भी इनका एम्प्लॉय हुआ फिर। अपॉइंट है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नोडल एजेंसी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नोडल नोडल एजेंसी एजेंसी है ना, तो मतलब पीएमओ कैसे अपॉइंट करता है? बीएमओ के थ्रू नोडल एजेंसी अपॉइंट होता है, और नोडल एजेंसी फिर मितानिन अपॉइंट करती है। पीएमओ के थ्रू नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी अपॉइंट हो गया मालूम। नोडल एजेंसी तो अपॉइंट हो गया, माय लॉर्ड, मितानिन किसका एम्प्लॉय होता है? नोडल एजेंसी। तनख्वाह हमसे रिलीज होती है इनकी साहब, मितानिन की। तो जो तनख्वाह देगा उसी का एम्प्लॉय होगा फिर ये मितानिन। और मितानिन का जो पोस्ट है वो भी लॉर्डशिप को एक्चुअली वो कोई पोस्ट नहीं है, वो एक मानदेय कितने साल के लिए है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है साहब, हर का एक साल का योजना वो होता है, चलता है, उसको एक्सटेंड टू एक्सटेंड किया जाता है जब करते जाते हैं। उसका वो दिखता है परफॉर्मेंस। परमानेंट एम्प्लॉय कोई नहीं होता है साहब। हाँ, क्या है उसमें मैडम? लॉर्डशिप, मितानिन भी इन्हीं के अंडर में आता है, उसी सेक्टर में काम करते हैं। और जो इनके जो अधिकारी एनजीओ जो बनाया गया है, एजेंसी है गवर्नमेंट जो आप बोल रही हैं, ये है लॉर्डशिप स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर। यही वाला लॉर्डशिप टेक्निकल सपोर्ट के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के टेक्निकल सपोर्ट के लिए एजेंसी काम करती है, और इनका एग्रीमेंट होता है इससे। दिस इज स्टेट कम इन डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट ये लॉर्डशिप, तो बहुत सारे, एक तो मितानिन के ऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा क्या ऑर्डर है उसमें, क्या है उसमें यही बिना नोटिस दिए उनको निकाला गया था, और फिर उन्होंने रिइंस्टेट की, कोर्ट ने रिइंस्टेट की है, वो ऑर्डर है। और मैं एक्सप्लेन कर दूं साहब, ये मीना जॉन वाला केस रिफर कर रहे हैं। इस केस में दिस ऑर्डर वाज पास बाय द ऑनरेबल जस्टिस पीपी साहू लॉर्डशिप, and we were not noticed in this case lordship. Subsequently when
we have not released the money and given assigned the work lordship. They have the Meena जो John मितानिन लोगों को सैलरी आप देते हैं? फंड स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। सब इन्हीं के स्टेट द्वारा। गवर्नमेंट कैसे देगी? फंड तो आपको देते होगी ना? हाँ, फंड हम स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ये फिर रिलीज करते हैं रिलीज कर एग्रीमेंट के तहत आपको देती होगी गवर्नमेंट? जी, हाँ, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस? जो एनजीओ को कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे इनको दे दिया, इन्होंने मितानी अपॉइंट कर दिया। हाँ, तो ठीक है, एग्रीमेंट होता है जी जी। एनजीओ के साथ, हम्म। तो उसमें गवर्नमेंट इनको देती होगी। हाँ, इनको दे जी। फंड हमको देती है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैलरी। इसमें एक और जजमेंट है लॉर्डशिप, मीनाक्षी निराला, उसमें सेम इशू था और कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट है, मैं 2 रखी हूँ अभी, अपने हाई कोर्ट की है, जिसमें ये कहा गया कि ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं और कोई भी संगठन जो पब्लिक वर्क करती है और इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है और इस तरह से वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वर्क लेते हैं, तो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लॉर्डशिप, वो कहती है कि ये आर्टिकल 12 के तहत वो उसके स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। क्या लिखा है बताइए? ये 2009 का है लॉर्डशिप, वॉल्यूम 5 SCC 577। ये पैरा में क्या कह रही? लास्ट पैरा पे उसको डिफाइन किया है लॉर्डशिप 26 में। क्या है? फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस बिफोर द कोर्ट देयर कैन, इसमें इशू ये है कि ये पब्लिक, ये संगठन का नाम था लॉर्डशिप उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संगठन, इस पर ये इशू आया था कि ये पब्लिक वर्क नहीं करता या आर्टिकल 12 से गवर्न नहीं होता। बाद में वो डिस्क्राइब करके इस जजमेंट में कि क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करता है, पब्लिक वर्क करता है, नेचर ऑफ ड्यूटी यो है, परसुएसिव कंट्रोल जो है स्टेट का है। इसमें क्या है, फंड कहाँ से आती? स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो परसुएसिव कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का है, इसीलिए इससे कवर होगा, स्टेट है। तो ये एक संगठन था जो ये लिटिगेशन में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लॉर्डशिप, और 2 ये अपने हाई कोर्ट की जजमेंट है उस पर। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला था इसमें? हाई कोर्ट ने उसको अलाउ किया पिटीशन लॉर्डशिप, स्टेट मान के। स्टेट मान के मितानिन का केस था, स्टेट मान के लोग। इसमें भी he was terminated from employment। हाँ तो लॉर्डशिप, क्या होल्ड किया? लॉर्डशिप उसमें जो मीना जान वाला केस जो मैडम रेफर कर रही है, उसमें उस केस को तो मैं जानता हूँ क्योंकि बाद में मैंने उसमें वो रीट अपील तक गया है सर। वो सिर्फ इस पॉइंट पे है, इसमें उन्होंने कहीं ये हेल्प नहीं किया कि स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज कम विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट लॉर्डशिप। अलाउ वो तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको टर्मिनेशन से पहले नहीं दी गई थी, वो मितानिन थे। इसमें भी तो यही लॉर्डशिप, बट इसमें ये है, आप इनका एग्रीमेंट देखेंगे पेज नंबर 26, काफी क्लियर लिखा हुआ है। उनका भी तो कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होता होगा।